السلام علیکم۔ بی اے پارٹ سیکنڈ اردو کی کلاس میں آپ سبھی کا استقبال۔ آج ہم فرسٹ پیپر میں مشہور غزل نگار خواجہ میر درد کی حالات زندگی اور ان کی غزل نگاری یا شعری خصوصیات پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خواجہ میر درد کی زندگی کے حالات اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس خاندان کا اثر ہی ہے کہ وہ میر اور سودا کے دور میں پیدا ہو کر اردو ادب کو ایک عظیم رتبہ دیتے ہیں اور اردو ادب کے میدان میں تصوف کے شاعر کہلاتے ہیں۔ خواجہ میر درد، جن کو اردو شاعری میں تصوف کا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو ادب میں جو غزلیں لکھی ہیں وہ تقریباً ہمیں ایک ہی رنگ تصوف یا متصوفانہ رنگ میں نظر آتی ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد کے بارے میں محمد حسین آزاد کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو میر درد کی یہ تصویر بیان کر رہی ہے۔ تصویر سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بزرگ جن کے چہرے سے ہی یہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنے بڑے صوفی قسم کے انسان تھے۔ وہ نورانی چہرہ جو صرف اس کے حقیقی کی بات کرتا ہے، اپنی زندگی میں بھی اور اپنی شاعری میں بھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے محمد حسین آزاد کی کہ مولانا محمد حسین آزاد خواجہ میر درد کا ان بلند پائے شاعروں میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے اردو زبان کو خراج اتارا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اردو زبان میں وہ سجاوٹ یا وہ رنگ ڈالا کہ اردو زبان اپنے ایک مکمل رنگ میں ایک اپنے واحد پہچان کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ امیر مینائی جو خود ایک خوشگو شاعر اور سخن فہم ہیں، خود بھی ایک شاعری کرتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اپنے زمانے کے، وہ خواجہ میر درد کی شاعری میں پسی ہوئی بجلیوں کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ اردو تذکرہ نگار اور نقاد ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں اور ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی تذکرے لکھے گئے، جتنے بھی نقاد تھے، انہوں نے کہیں بھی میر درد کے لیے کڑوے لفظ استعمال نہیں کیے، بلکہ خراج تحسین کے طور پر ان کی تعریف کی ہے، چاہے وہ ذاتی طور پر ان کی خود کی بات ہو یا ان کی شاعری کی بات ہو۔ خواجہ صاحب شعرائے اردو کی محفل میں مختصر سا شعری سرمایہ لے کر داخل ہوئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اردو، عربی، فارسی تینوں زبان کا علم رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی زیادہ تر تصنیف، یعنی ایک اردو دیوان کو چھوڑ کر جتنی بھی تصنیف لکھی ہیں وہ سب فارسی زبان میں لکھی ہیں۔ تو اردو میں ہمارے لیے صرف ایک ان کا اردو دیوان ہے اور جس میں تقریباً سبھی غزلیں ہیں۔ انہوں نے صرف غزل کا میدان چنا۔ سودا اور میر کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور سودا اور میر کے ساتھ درد کا نام بھی آتا ہے کہ میر درد، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا کا دور۔ اس دور میں جیسا کہ سودا نے قصیدہ نگاری، حضویہ اور بھی بہت سی اصناف میں طبع آزمائی کی، میر تقی میر غزل، مخمس، رباعی، اس کے علاوہ مثنوی،
कशीदा निगारी, हर रंग में अपने आप को ढाला, लेकिन मीर दर्द का सिर्फ एक ही रंग नज़र आता है। इन्होंने एक ही मैदान को चुना और वो मैदान था गज़ल का मैदान, और उसमें भी एक ही रंग चुना, वो था तसव्वुफ़ का रंग। तो हमारे पास एक मुख्तसर सा इनका शेरी सरमाया है जो उर्दू दीवान है। उसमें तकरीबन 1500 के आसपास शेर हैं और उनमें ज़्यादातर गज़लें हैं, कुछ रुबाइयाँ हैं। इन्होंने जो कुछ कहा वो सरासर इंतखाब है, यानी इनके हर शेर गज़ल में थोड़ा ही कहा है, लेकिन जो भी कहा है वो लगता है कि उसमें उन्होंने अपना पूरा खूने जिगर सर्फ कर दिया है। इनको तसव्वुफ़ का शायर इसीलिए कहा जाता है। इनका बेशतर कलाम एक मत्सूफ़ाना रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने फरमाया कि तसव्वुफ़ जैसा इन्होंने कहा उर्दू में आज तक किसी से ना हुआ। वहीं तारीख़ अदब उर्दू के मुअल्लिफ़ जनाब राम बाबू सक्सेना, जिन्होंने तारीख़ अदब उर्दू किताब लिखी, उसमें वो लिखते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द के हर शेर में मासूक से मुराद मासूक हकीकी या मुर्शद है। यानी वो अपने शेर में जहाँ भी माशूक या महबूब का जिक्र करते हैं तो उसे हमें माशूक हकीकी मान लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने जो भी गज़लें लिखी हैं उसमें उनका माशूक माशूक हकीकी है, क्योंकि कहा जाता है कि इसके मिजाजी इसके हकीकी का जीना है। वो सीढ़ी है कि जो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक से जब मोहब्बत करेगा, उन्हें उनके साथ इज्जत से पेश आएगा, उनके लिए अपने दिल में जगह रखेगा, तभी वो खुदा से इश्क या खुदा तक पहुंच सकता है। तो इन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी में, इब्तदाई ज़िंदगी में, जब तक इन्होंने दरवेशी रंग इख्तियार नहीं किया था, तो इनके कुछ ऐसी गज़लें भी मिलती हैं जिनमें हमें माशूक के तौर पर माशूक के मिजाजी या इसी ज़िंदगी का चलता फिरता एक महबूब नज़र आता है। लेकिन राम बाबू सक्सेना की बात भी दुरुस्त है कि इनकी तकरीबन गज़लों में, कुछ को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन गज़लों में जहाँ भी मासूक का जिक्र आया वो मासूक हकीकी मान लेना चाहिए। डॉक्टर एजाज हुसैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके यहाँ इश्क हकीकी का जलवा ऐसा गालिब है कि मजाजी इश्क को कहीं जगह ही नहीं मिलती। तो आइए हम इन्हीं ख्वाजा मीर दर्द की ज़िंदगी का हाल जानते हैं। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, इनका ख़ानदान क्या था, वालिद कौन थे और इनका ख़ानदान का नस्ब क्या था। तो इन सभी बातों को हम मजमूई तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। इनकी पैदाइश 1721 ईस्वी में और हिजरी के मुताबिक 1133 हिजरी में दिल्ली में हुई। वफ़ात भी दिल्ली में 1785 ईस्वी, हिजरी के मुताबिक 1199 हिजरी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के जब हालात बद से बदतर हुए तो उस दौर के तकरीबन सभी शायर दिल्ली छोड़कर चले गए, लेकिन ये एक ऐसे वाहिद शायर थे ख्वाजा मीर दर्द जो उस मुश्किल हालात में भी दिल्ली में ही रहे, क्योंकि ये दिल्ली से इनको एक ख़ास लगाव था, एक ऐसी ख़ास मोहब्बत थी कि इन्होंने मुश्किलें झेली लेकिन दिल्ली को छोड़कर नहीं गए। दिल्ली में ही 1721 में पैदा हुए और दिल्ली में ही 1785 में वफ़ात पाई। इनके वालिद ये भी अपने ज़माने के एक शायर थे, ख्वाजा मोहम्मद नासिर नाम था और अंदलीब तखल्लुस के साथ शायरी करते थे, इसलिए ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब के नाम से मशहूर हैं। ख्वाजा मीर दर्द का सिलसिला नस्ब बाप की तरफ से हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद से और माँ की तरफ से सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है।
तो ये अपने वालिद की तरफ से नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और माँ की तरफ से अपने ननिहाल की तरफ से कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का ख़ानदान बुखारा में रहता था और जैसा कि हम बहुत सी किताबों में यहाँ देखते हैं और ये जानते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द का ख़ानदान जो है वो बुखारा से हिंदुस्तान आया था। तो उसी की थोड़ी सी तफसील हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो नक्शबंदी सिलसिले के बानी हैं, मुअज़्ज़िद हैं, इनका ख़ानदान जो है वो बुखारा में रहता था। इसी ख़ानदान का एक फ़र्द जिसका नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर नक्शबंद है, ये अपने 3 बेटों के साथ बुखारा से हिंदुस्तान चला आता है। इनके बेटों का नाम ख्वाजा मोहम्मद सालिह, ख्वाजा मोहम्मद याकूब और ख्वाजा फ़तहुल्लाह था। ख्वाजा मोहम्मद ताहिर जब बुखारा से हिंदुस्तान आए, उस वक्त हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी, उन्हीं का ज़माना था। औरंगज़ेब के जदे आला अमीर तैमूर चूँकि हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद के मुर्शद अमीर कलाल से ख़ास इरादत रखते थे, ख़ास लगाव था, इसलिए औरंगज़ेब ने भी उसी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के तौर पर इनको यानी मोहम्मद ताहिर को मनसब देना चाहा, लेकिन इन्होंने उस मनसब को कबूल ना किया और कुछ अरसे हिंदुस्तान में रहे। फिर अपने 3 बेटों को छोड़कर हज के लिए चले गए। इनके 3 बेटे यही थे जिनका नाम ख्वाजा मोहम्मद सालेह और मोहम्मद याकूब और ख्वाजा फ़तहुल्लाह था। औरंगज़ेब ने मोहम्मद सालेह और याकूब को मनसब भी दिया और इनकी शादी मुराद बख्श की बेटियों से कर दी, तो ये भी अब शाही ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ हो गया। लेकिन ख्वाजा फ़तहुल्लाह ने शाही ख़ानदान में शादी करनी कबूल ना की और ये इस ख्याल से इनकार कर दिया कि इनकी नजाबत मुतासिर हो। इन्होंने औरंगज़ेब के मीर बख्शी सर बुलंद खां की बहन से शादी कर ली और मीर दर्द इन्हें ख्वाजा फ़तहुल्लाह के, यही जो हम मीर दर्द की बात करते हैं, ख्वाजा मीर दर्द जो है वो इन्हीं फ़तहुल्लाह के परपोते थे। इन्हीं के खूनी जिगर से ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब का सिलसिला चला रहा था और इसी सिलसिले से दर्द का भी ताल्लुक़ है। अपने नाम ख्वाजा मीर के बारे में कि इनका नाम ख्वाजा मीर किसने रखा, उसके बारे में ख्वाजा मीर दर्द लिखते हैं कि ये नाम इनके नाना अमीर सैयद मोहम्मद हुसैनी कादरी बिन नवाब मीर अहमद खां ने रखा था, कि मेरा नाम जो है वो मेरे नाना अमीर सैयद मोहम्मद हुसैनी कादरी बिन नवाब मीर अहमद खां ने रखा था। तो यहाँ तक हमने देखा कि ख्वाजा मीर दर्द जिनका ख़ानदानी ताल्लुक़ नक्शबंदी सिलसिले था, ये बुखारा से हिंदुस्तान आए। उस वक्त औरंगज़ेब का ज़माना था, औरंगज़ेब ने इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मनसब देना चाहा, जागीर देनी चाहिए, इन्होंने कबूल ना की। ये खुद हज के लिए चले गए, लेकिन इनके 3 बेटे, उनकी भी औरंगज़ेब ने खूब इज़्ज़त की, उनको मनसब दिया और मुराद बख्श की बेटियों से शादी करके इनका रिश्ता शाही ख़ानदान से जोड़ दिया। लेकिन इन्हीं मोहम्मद ताहिर के तीसरे बेटे ख्वाजा फ़तहुल्लाह, उन्होंने शादी कबूल ना की शाही ख़ानदान में और औरंगज़ेब के ही मीर बख्शी सर बुलंद खां की बहन से शादी की। यही फ़तहुल्लाह जो हैं उनसे मीर दर्द का ताल्लुक़ है। जहाँ तक इनके नाम का ताल्लुक़ है उसके बारे में भी मीर दर्द लिखते हैं कि मेरा नाम मेरे नाना अमीर सैयद मोहम्मद हुसैनी कादरी बिन नवाब मीर अहमद खां ने रखा था। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे भी हम ख्वाजा मीर दर्द की हालात ज़िंदगी पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।